good morning. I hope you guys are doing well. So let us start with the water pollution today. We were discussing water pollution in the previous class also, but today we will be starting the discussion अब with the pollutants. Pollutants के साथ हमने पिछली क्लास में pollutants के बारे में ज़्यादा बात करी थी. And from there onwards, we are going to talk about water pollution. So this is the last class that we did. We talked about waterborne diseases, watershed diseases, water-based diseases, and water-related diseases which are caused by insect and certain vectors. And I told you to write this because it is important. We discussed about the domestic waste as well as the industrial waste and किस waste से क्या problem होती है या किस metal से क्या problem हो सकती है. I told you to study about that. We were talking about water pollution, and today also we'll be talking about water pollution only. Okay, and I hope आपका एयर पोल्यूशन बहुत सॉलिड हो चुका है. You guys already are learning the various pollutants that are there. So we all know that about mostly, or you can say 97% of the land is covered with water. So अगर water pollution को हम पढ़ेंगे तो और उसको सही रखेंगे अगर वाटर को, तो it is going to give a lot of benefits. So water bearing layers of soil and rocks that are called as aquifers are very important to be preserved. So there are water bearing layers of soil also. So water already भी ऐसे present है and कुछ layers में भी already present होता है जिसे हम aquifers बोलते हैं. Ground water is also very important. Ground water is very important for agriculture and industrial purposes. Groundwater in the form of wells and springs are often the only surface or only source of water supply, especially in the villages and the small towns and areas. But because of pollution, because of the population change, industrialization, urbanization, etc., the water is getting deteriorated. There are certain parameters. क्या बोलते हैं हम इसको? Parameters कहते हैं कि हम water pollution check कैसे कर सकते हैं. अब ये सारी चीजें water pollution में आ जाती हैं, but कैसे पता लगेगा कि जो water है वो polluted है या नहीं है, water हमारे लिए fit है या नहीं है. So there are certain parameters जिनको आज हम लिखेंगे. There are certain parameters. A large amount of water is discharged back after domestic and industrial usage. बहुत सारा ऐसा पानी है जो domestic usage और industrial usage के बाद वापस से क्या किया जाता है, बहा दिया जाता है, water body में डाल दिया जाता है. This contaminated with domestic waste and industrial effluents. When this contamination reaches beyond a certain level, we call it as a pollution. और जिसकी वजह से होता है उसे हम pollutants कहते हैं. So water pollution can be described as contamination of these streams, these lakes, these underground water areas, etc. Water pollution may be defined as contamination of streams, lakes, seas, underground water, ocean by substances which are harmful for living beings. Industrialization and population explosion are two main factors for pollution, that is water pollution. So क्या है, industrialization की वजह से as well as population का rapid growth होना, दो ऐसे factors है जिनकी वजह से we can say that water अभी क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा deteriorate होता जा रहा है. Now what are the physical factors of water pollution? आपको पानी को देख के कैसे पता लगता है कि पानी contaminated हो गया है? So there are certain physical factors. So कुछ physical factors हैं. Let us write it down. Physical factors. अब physical factors जैसे कि या physical parameters भी कह सकते हो. Physical parameters like you have color, odor, turbidity, taste, temperature, and electricity conductivity. ये सारे क्या होते हैं? These are the physical factors of water pollution, right? So वाटर के अंदर अगर कंटामिनेशन होगा तो वाटर क्या बन जाएगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर वाटर के अंदर
पॉल्यूशन आ जाएगा, वाटर पॉल्यूटेंट इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ऐसा हो जाएगा तो वाटर क्या होगा, इम्प्योर होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेशन। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कंटेमिनेशन। एंड ऑब्वियस सी बात है, टर्बिडिटी क्या होता है, हेजीनेस इन द वाटर। सो कलर एंड टर्बिडिटी तो आप आइस से देख के भी आप उसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, राइट। वाइल अगर आप ऑर्डर देखते हो तो आप स्मेल करके उसे देख सकते हो, एंड वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग भी हो जाता है। देन दिस इज द फर्स्ट। देन द सेकेंड, दैट इज chemical factors or chemical parameters. Chemical parameters क्या होते हैं, chemical parameters, these include amounts of carbonates, sulfates, chlorides, nitrates, and metal ions. These chemicals form the total dissolved solid present in the water. ठीक है, ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं जो पानी में होते हैं। नाउ केमिकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, केमिकल पैरामीटर्स, आपके पानी में कार्बोनेट्स आ गए हैं, सल्फेट आ गया है, क्लोराइड, फ्लोराइड, एक्सेस ऑफ एनी हेवी मेटल इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग। A third factor, and this is called as the biological parameter. Biological parameter, it is what? It includes matter like algae, fungi, viruses, protozoa, and bacteria. So the life forms present in the water are affected to a good extent by the presence of pollutant. So these pollutants in water may cause a reduction in the population of both lower and higher plants and animals. And because of these parameters, हमारे plants and animals effect होते हैं. So what are the parameters? The parameters that through which you come to know that ठीक है पानी contaminated है, to find the contamination level of the water, you can look at the physical parameters or factors, you can look at the chemical parameters as well as the biological parameters, and they are as follows. इसे note करो. Then we'll talk about the sources.
सो सोर्सेज तो आई थिंक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ग्राउंड वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे फिर. We'll talk about groundwater after this. You can note this down. I hope you have noted this. Now let us draw a table. एक table draw करते हैं. And let us talk about cause of water pollution. वाटर पोल्यूशन के कॉजेज के बारे में बात करेंगे. Okay, let us write it down. What are the multiple causes? So solid waste, the presence of solid waste in water. Livestock animal waste because of sewage industry. Then we have because of sacrificed center or because of land erosion. Waste coming from domestic waste. Industrial waste. Industrial waste के बाद we have household. Household अलग से लिख लेते हैं. And we have waste also coming from different restaurants या फिर restaurant, it can be hospitals, etc. ठीक है. सॉलिड वेस्ट के साथ साथ यहाँ पे डंप या ऑयल स्पिल भी लिख सकते हो. So these are all the causes of why water pollution or through which the water pollution can happen. Written? Okay. Then let us talk about very important types of water pollution. Please note all of these things down. ये तो बहुत easy है. Types लिखते हैं water pollution के. The first type of water pollution. First type is surface water pollution. Surface water pollution. So water resources like huge oceans, lakes, rivers are called as surface water. क्या होती है यहाँ पे? Lakes या फिर rivers या ओशंस कहाँ आते हैं? सरफेस वाटर में आते हैं, जो आपको ऊपर से दिख सकते हैं. दैट इज सरफेस वाटर. दे गेट पॉल्यूटेड व्हेन कंटामिनेटेड. दे कैन गेट polluted because of chemicals, because of nutrients and heavy metals that are carried forward from farms, factories, etc., or from cities as well. So our
seas also are getting spoiled because of oil fills, and that is also a kind of surface pollution. उसे क्या कहते हैं? surface pollution कहते हैं. Second type of pollution क्या होता है? Second type is the groundwater. द ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन. अब ये कैसा पॉल्यूशन है? ये वो पानी है जो हम डायरेक्टली नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, वो लेवल वाटर टेबल के अंदर है, ग्राउंड के अंदर है. So water stored underground in aquifers. So water stored underground. Water stored underground in aquifers is called as ground water. जो ऐसा पानी जो हमारे वाटर टेबल के अंदर है, ये हमारी जो लैंड की सरफेस है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रॉक्स है, एंड इन रॉक्स से पेनिट्रेट करके जो पानी हमें नीचे मिलता है, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर. एंड दिस वाटर इज क्लीन. वाई? बिकॉज ये इधर से ऑलरेडी फिल्टर हो चुका है. ये एक्वीफायर्स के अंदर प्रेजेंट है. इन पोरस जितनी हमारी रॉक्स हैं उनके अंदर सीप डाउन होके इनके अंदर इम्प्योरिटीज हट चुकी होती हैं इस वाटर के अंदर. तो ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हमें मिलता है. सो दिस वाटर इज कंसिडरेबली अ गुड सोर्स ऑफ वाटर, राइट? So groundwater gets polluted when contaminated through leaching of the pesticides or the chemicals or the fertilizers or the waste that is leached from landfills or the specific system. In this way, aquifer gets polluted. It is virtually impossible to remove contamination from groundwater. तो जितना ज़्यादा नीचे पानी चला जाएगा, contamination remove करना उतना ही impossible हो जाएगा. Groundwater can spread contamination into streams, lakes and oceans as well. So groundwater एक बहुत ज़्यादा major source है, और अगर हमने groundwater को सही से नहीं रखा, then it will cause multiple problems. अब now we have already discussed about the sources. अगर sources नहीं याद हैं तो we discussed about the sources. That is the point source. Point source मतलब हमें पता है exactly कहाँ से गंदा water contaminate होके आया है. नॉन पॉइंट सोर्स जब हमें बहुत सारे सोर्सेस पता है और एक नहीं पता है, एंड एक हो सकता है ट्रांस बाउंड्री. तो अब एक कंट्री ने वेस्ट डंप कर दिया एक ओशन में और वो दूसरी कंट्री को भी कंटामिनेट कर देता है, उसे हम ट्रांस बाउंड्री कहते हैं. ठीक है, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. जैसे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट इसके अंदर आता है. क्या आता है? अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट पानी में डाल दिया तो वो इसी तरीके से कंटामिनेट करेगा. रेडियो एक्टिव वेस्ट, ओके, रेडियो एक्टिव वेस्ट, राइट? ओके, नाउ so what exactly is wastewater? So with billions of people in the planet disposing water, this water contamination becomes a major problem. ये क्या बन जाती है? Major problem. According to the reports that are released from the World Health Organization, we see that millions of people have access to clean and safe drinking water, but millions do not, right? So used water is called as the waste water. और ऐसा भी होता है कि पानी क्या हो जाता है, यूज किया हुआ पानी बहुत लोगों को मिलता है, उस टाइप ऑफ वाटर को हम वेस्ट वाटर कहते हैं. क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर कहलाता है वो. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय WHO, more than 2 million of people have lack of access to clean and safe drinking water, and they use used water, which is called as waste water. It comes from our sinks, showers and toilets, and from commercial and industrial and agriculture activities. It also includes forms of water runoff. It occurs because of some salts, grease in it, or some debris in it, or maybe इसके अंदर क्या हो? पैथोजेंस भी हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? पैथोजेंस भी हो सकते हैं. पैथोजेंस हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा. तो ऐसे वाटर को हम वेस्ट वाटर कहते हैं. अब एक और तरीके से वाटर कंटामिनेट हो जाता है कभी कभी बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. कैसे हो जाता है? बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स लाइक NPK जो हमें एज फर्टिलाइजर्स
क्या चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, ये लीच आउट करके या फिर ये रन ऑफ करके पानी में जा सकते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है. सो केमिकल फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज्ड बाय द फार्मर्स कैन ऐड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, या फिर rain washed fertilizers can also cause multiple problems. Together, sewage and fertilizers can cause massive growth of planktons. So ये प्लैंक्टॉन्स की मैसिव ग्रोथ हो जाए या फिर अगर एल्गाई की मैसिव ग्रोथ हो जाए तो हमारा वाटर बॉडी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है. ऐसे ही इंडस्ट्रियल वेस्ट से पेट्रोकेमिकल्स आ जाते हैं, है ना. इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर हो जाए पानी के अंदर, या फिर बहुत ज्यादा पेट्रोकेमिकल्स पानी में मिल जाएं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कमिंग फ्रॉम your industrial waste. So industrial waste can contain large number of pollutants like asbestosis, है ना. asbestosis पानी के अंदर आ सकता है, asbestos लिख लो या फिर asbestos, S इन वेस्ट को क्या बोलते हैं, एस्बिटॉस. और क्या आ सकता है, हेवी मेटल्स आ सकते हैं जैसे कि जिंक, लेड, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एक्सेट्रा. Petrochemicals are extremely harmful, very toxic to the plants as well as the animals. Leather coming from chemical industry. So around 70% of the waste is then directly dumped to the water bodies and which can cause problem. ऐसे ही radioactive waste जो एक्सरे मशीन से आता है वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है. कौन सा है हमारा, रेडियो वेस्ट जो कि एक्सरे मशीन से आ जाता है या कहीं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिस्पोज ऑफ हो गए, वो भी प्रॉब्लम है. ऐसे ही ऑयल पॉल्यूशन बहुत मेजर प्रॉब्लम है. ऑयल वेस्ट या फिर ऑयल स्पिल पानी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. इसी तरीके से देयर इज सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट ये भी एक बहुत प्रॉब्लमैटिक है. So solid waste क्या है, so dumping of the solid waste or littering the water body is a huge problem. ये क्या है, this is a huge problem. Litters like from coming from glass factories या फिर glass, plastic, aluminium, these are all causing multiple problems. About 70% of the plastic will stay like this. 80% of the water domestic sewage की वजह से ही क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब होता है. अगर इन्वेजिव स्पीसीज वहां रहने लग गई तो एलियन स्पीसीज की वजह से भी वाटर पोल्यूट होता है. एलियन स्पीसीज जिन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं, ठीक है, पैथोजेंस कहते हैं, अगर ये यहाँ पे रहने लग गए तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है. इन्वेसिव स्पीसीज कैन ऑल्सो कॉज मल्टीपल प्रॉब्लम्स, राइट. These are important. Then thermal pollution, पानी गरम गरम डाल दिया तो भी प्रॉब्लम है. इसी तरीके से एसिड रेन अगर पानी में ऐड हो जाए तो भी बहुत प्रॉब्लम है. एसिड रेन अगर पानी में ऐड हो जाए या फिर गरम पानी में गरम पानी डाल दिया, जिसे हम थर्मल पॉल्यूशन भी कहते हैं, तो इन सब से भी हमारा वाटर खराब होने लगता है. Now we were talking about water related diseases. I told you कि ये पेपर में आ जाता है. I'll give you a complete list. Please write it down. So on an average, 250 million people worldwide succumb to the problems that are caused because of water pollution. Water pollution की वजह से इतने सारे लोग हर बारी मरते हैं. There are pathogens that are responsible for causing these diseases. So water borne diseases कौन सी होती हैं? आई गिव यू द लिस्ट. वैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसी पे ही ऐड कर देती हूँ. वाटर बॉर्न डिजीजेस. ओके, सो वाटर बॉर्न डिजीजेस जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, दीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग द वाटर दैट इज अनफिट. वाटर वॉश डिजीजेस, वाटर वॉश जैसे कि ट्रोकोमा, ये बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है, ट्रोकोमा. वाटर बेस्ड डिजीजेस इज साइकोमोसिस, लाइक, ठीक है, ये भी पेपर में इस बार ही आया है. एंड वाटर रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि ब्लैक फाई. beside these pathogens, as I told you, there are multiple industrial waste जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है.
तो इनके बारे में अब लिख लेते हैं। मल्टीपल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो क्या करेगा, जो क्रिएट कर सकता है प्रॉब्लम, उनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, सो आई विल गिव यू कंप्लीट लिस्ट, उसे नोट कर लो। जैसे कि पहला, पैथोजेंस नहीं है, अब ये क्या है, ये सारे टॉक्सिक हेवी मेटल्स, टॉक्सिक हेवी मेटल्स। सो पहला टॉक्सिक हेवी मेटल क्या, कौन सा है? द फर्स्ट इज मर्करी। मर्करी, सो मर्करी क्या करता है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस वाज आज, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत ज्यादा आ रहा है इसलिए इसे लिखो, एंड इम्यून सिस्टम को। देन इसका इफेक्ट और कहाँ आता है, इसका इफेक्ट देखा जाता है लंग्स पे, किडनी पे, स्किन एंड आईज। Then very important, the diseases caused because of this is called as Minamata, जो कि सबसे ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट इसका जापान में देखा गया था in 1932 till 1968, where a factory producing mercury discharged the waste liquid। यहाँ पे एक फैक्ट्री थी, उसने मर्करी को कहाँ डाल दिया था, I'll write you the name of the bay also, मीनामाटा बे के अंदर डाल दिया था, इसलिए इस डिजीज को मीनामाटा कहते हैं। ठीक है, क्या डाला था, व्हाट वाज द सब्सटेंस, एसिटिक सब्सटेंस था एक, एसिटिक एसिड डिस्चार्ज पानी में कर दिया था, उससे हम लोग मीनामाटा बोलना स्टार्ट करा था। हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल मर्करी, और क्या था वहां पे, हाई कंसंट्रेशन of methyl mercury was there. Because of this, the fishes and the shellfishes that were there, they were all destroyed and they all died. And a lot of people, about 50,000 people were also, and 50,000 people were also affected because of this. उन्हें severe brain damage हुआ था, ब्रेन डैमेज हुआ था, बहुत सारे लोगों को पैरालिसिस हो गया था, देन इनकोहेरेंट स्पीच हो गई थी, एंड डेलिरियम। सो दिस वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ मर्करी, इसलिए यहां से होने वाले डिजीजेस को हम मीनामाटा डिजीज कहते हैं। ओके, आई विल गिव यू टाइम टू राइट इट। सेकेंड, we have cadmium। cadmium, इससे क्या होता है, सबसे मेजर कॉज इज नोजिया, इट कॉजेज नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, मसल क्रैम्प्स, इनवॉलेंटरी सैलिवेशन होने लगता है, एंड सेंसरी डिस्टर्बेंसेस। इट कैन ऑल्सो कॉज लिवर इंजरी, convulsions, shock, and renal failure. The diseases that is caused because of cadmium is called as Itai disease, ओके। विथ अगर आप मास कैडमियम ले लोगे या फिर पॉइजनिंग ऑफ टोयोमाटा प्रीफेक्चर
जो कि ऑल्सो हमने जापान में ही देखा था इन 1912। एक माइनिंग कंपनी थी जिसने कैडमियम बहुत ज्यादा रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से बॉटम ऑफ द रिवर पे एंड लेक्स में बहुत ज्यादा कैडमियम हो गया था। एंड दिस प्रॉब्लम इताई ताई या इति इति कह सकते हो, वो लोगों को होने लगा था। सो इट वॉज सो व्हेन द वाटर वॉज यूज, सो ये क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था, माउंटेन्स पे इसको ड्रॉप कर दिया था। तो माइनिंग फैक्ट्री ने, एंड ये क्या चला गया था, ये वाटर बॉडी के अंदर चला गया था। इस पानी से इन्होंने इरिगेशन में यूज किया था, इस पानी को इरिगेटेड लैंड के अंदर। इरिगेटेड लैंड के अंदर इसको यूज कर लिया था, एंड यहाँ पे राइस ग्रो हो रहा था। So what happened? So people ate contaminated rice, जिसकी वजह से what happened? They had brittle bones. ठीक है, पेन इन स्पाइन, उनकी स्पाइन में दर्द होने लगा, एंड लेग्स, दे स्टार्टेड टू कफिंग, उन्हें अनीमिया होने लगा, एंड देयर किडनी फेल्ड, तो किडनी फेलियर के पास चले गए वो। दिस हैपेंड इन जापान। Okay, then let us talk about third, that is nitrate. ओके, सो अगर ये पानी के थ्रू, नाइट्रेट अगर पानी के थ्रू ऐड हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, it causes multiple problems. What all problems nitrate causes? So drinking it can cause multiple problems. So in human body, in human body, nitrates are converted. Nitrates are converted into microbial flora of intestine. These nitrates then combine with hemoglobin of blood to form, it forms methahemoglobin, which does what? Which interferes with O2 carrying capacity of blood, जिसकी वजह से ब्लड जो O2 कैरी करता है उसकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर नाइट्रेट आपकी बॉडी में इंक्रीज हो गए तो आप क्या करती है, आपकी बॉडी ब्लड में ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है, राइट? सो द डिजीज produced is called methemoglobinema, एंड इन इजी में इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कह सकते हो। ब्लू बेबी सिंड्रोम। एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं, पता कैसे लगता है आपको ये हो गया है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
and blue colored skin, shortness of breath and blue colored skin, ये दो सिम्टम है. एंड ये बहुत ज्यादा कॉमन पता है कहाँ है? सो इट इज वेरी वेरी कॉमन इन राजस्थान. ये राजस्थान में बहुत ज्यादा देखा जाता है. इट इज प्रेवलेंट इन राजस्थान. एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन डाइड. बहुत ज्यादा, एक बार जब फैला था तो बच्चे मर गए थे. ये बच्चों में ज्यादा जल्दी होता है. ब्लू बेबी सिंड्रोम इसे कहते हैं, जहाँ पे आपको ब्रेथलेसनेस होने लगती है, बॉडी ब्लू कलर की होने लगती है, बॉडी में क्या जाता है, नाइट्रेट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वेन्स हैं, वेन्स के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है. ठीक है, ब्लड फ्लो करता है. ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2 को एब्जॉर्ब करता है. O2 को एब्जॉर्ब करके आपके हार्ट तक लेके जाता है ना. हार्ट में इसे पंप करने के लिए हेल्प मिलती है. हम इससे ब्रीथ करते हैं, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम चलता है. लेकिन अगर O2 ही कम हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ब्रेथलेस हो जाएंगे और हमारी बॉडी में O2 कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा. ये होता है नाइट्रेट की वजह से. देन वी हैव आफ्टर दिस, सो दिस वाज द थर्ड वन. अब हम फोर्थ डिस्कस करते हैं. फोर्थ क्या है, वी हैव फ्लोराइड. तो अगर आपने एक्सेस फ्लोराइड ले लिया ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, it will cause what? It will cause fluorosis, which will affect your teeth and your bones. Okay. So chronic high level exposure to fluoride can cause skeletal fluorosis. और क्या हो जाता है, skeletal fluorosis हो जाता है. So which ultimately causes stiffness and pain in joints. stiffness होते हैं और pain in joints होते हैं. ऑल्सो यहां से क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एक्सेसिव सलाइवा, नॉजिया एंड वॉमिटिंग. देन वी कैन हैव मसल स्पैजम्स. And this also occurs a lot in राजस्थान. ये हमने कहाँ देखा है, राजस्थान में, जहां पे लोगों का हम्प्ड बैक होगा, क्योंकि इनका स्केलेटल सिस्टम चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा हम्प्ड बैक होता है, लेस वाटर, और उसके अंदर भी अगर फ्लोराइड आ जाए तो. देन वी हैव द फिफ्थ वन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत बार आ जाता है, आर्सेनिक. अगर बहुत ज्यादा पानी में क्या आ गया, आर्सेनिक आ गया. सो आर्सेनिक पॉइजनिंग विल कॉज वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, as well as diarrhea. Okay, then ये क्या जाता है, एक नंबनेस देता है बॉडी में. एंड अगर इसकी एक्सट्रीम हो जाए बहुत ज्यादा, तो ये मसल क्रैम्पिंग एंड डेथ भी कर सकता है, डेथ का भी कॉज बनता है. अगर इससे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो गया, अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू आर्सेनिक इज कॉज, so it can create what, high levels of inorganic arsenic, पिगमेंटेशन चेंजेस लाता है हमारी स्किन पे, हमारी स्किन में पिगमेंटेशन होने लगते हैं. देन हार्ड पैचेस आर क्रिएटेड,
on palms and soles of feet, which we call as hyperkeratosis. Then it can cause skin cancer or cancer of bladder and lungs. ये सबसे ज्यादा चाइना में प्रेवलेंट है. चाइना में आर्सेनिक बहुत ज्यादा हो जाता है और आर्सेनिक की वजह से डिजीज क्या होती है, कॉल्ड एज द ब्लैक फुट डिजीज. इस डिजीज का क्या नाम है, ब्लैक फुट डिजीज. राइट. सो इससे होता क्या है, सो इट इज अ डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स. हमारी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, लीडिंग टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो एंड गैंग्रीन. क्या हो जाता है, गैंग्रीन. which causes gangrene. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहीं पर ही लिख देती हूँ या मैं आपके लिए. सिक्स्थ वन इज लेड. और अगर लेड पानी में चला गया बहुत ज्यादा तो नोजिया, वॉमिटिंग, अनेमिया एंड डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम होता है. और यहां पे हमने मैगी की एडवर्टाइजमेंट देखी, मैगी की न्यूज सुनी ही है. एंड किडनी फेलियर. राइट. आई होप दिस इज क्लियर. Then let us write other things also. Let us talk about natural and anthropogenic sources. So कुछ natural sources से हमें क्या मिलते हैं, pollutants मिलते हैं. These natural sources can be siltration. Siltration क्या होता है, it includes soil जो पानी के अंदर ऐड हो गए, soil, sand एंड मिनरल्स जो पानी में ऐड हो जाते हैं. एंड इट कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. कहीं पर फ्लड आ गई है, पानी में ऐड हो गए, तो ये क्या है, नेचुरल कॉजेज की वजह से पानी में, बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉमन कॉजेज पानी में वी हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और इट कैन कॉजेज अदर प्रॉब्लम. ठीक है. और फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लडेड एरिया से माउंटेन्स में जो आने वाली सिल्ट थी वो पानी में ऐड हो गई, तो ये भी एक नेचुरल कॉमन फिनोमिना है. वाइल एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज होते हैं हमारे मैन मेड सोर्सेज, जो कि हमारी बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज पानी में ऐड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक या सीवेज वेस्ट एक्सेट्रा. सो देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट कैन बी कॉज बिकॉज ऑफ दिस. एक डायग्राम बनाते हैं, दिस विल मेक थिंग्स इवन मोर क्लियर. सो एक बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसीलिए ये बनाएंगे. प्लीज राइट इट डाउन और ड्रॉ दिस विद मी. प्रेसिपिटेशन, ये हमारा लैंड है, वी हैव द सीवर है, और अगर सीवर में लीकेज हो गई, अगर सीवर में किसी तरीके की भी लीकेज हो गई तो दिस विल कॉज प्रॉब्लम. पेक्टिक टैंक और सेस्पूल,
Then we have pumping well. Here irrigation happens, or you can write immigration. ट्रक ने यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट डंप कर दिया, which is called as the landfill dump. Here also it causes what? Percolation. ये percolation भी cause करता है वाटर टेबल के अंदर. कहाँ पे? वाटर टेबल में. Then there can be जस्ट गिव मी अ मिनट, देन उसके बाद आप नोट कर लेना. लीकेज हो सकती है, डिस्पोजल और इंजेक्शन वेल लगून पिट के अंदर. लगून पिट में हम डालते हैं चीजें. देन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे स्ट्रीम्स में से आ जाए बहुत ज्यादा वेस्ट. फ्रेश वाटर है, पंपिंग वेल. डिस्चार्ज और इंजेक्शन ऑफ वेस्ट, एंड यहाँ पे सेलाइन वाटर बन सकता है. सो these are different ways in which the water can get contaminated. Just look here. So अगर आपके पास क्या है, ये पाइप थी, यहाँ से पानी लीक हो गया, तो अब जो नीचे पानी है, जो नीचे आपका ग्राउंड वाटर है, इट कैन गेट कंटेमिनेटेड. ये क्या हो जाएगा? कंटेमिनेट हो जाएगा. पंपिंग वेल से पानी निकाल लिया आपने, लेकिन ऑलरेडी पानी कंटेमिनेटेड था बिकॉज ऑफ घर से आता हुआ पानी, ठीक है, टैंक से, तब भी प्रॉब्लमैटिक है. लैंडफिल डंप करा, लेकिन यहाँ पे सीप डाउन, पर्क्यूलेट कर गया, लीच डाउन भी कह सकते हो जिसे, लीचिंग हो गई वेस्ट की, तो भी आपका ग्राउंड वाटर खराब हो जाएगा. ऐसे ही लेगून पिट्स के अंदर आपने पानी रख साफ होने के लिए यहाँ डाला, वो भी लीक डाउन हो गया, अगर लीच डाउन कर गया, जैसे यहाँ के जितने भी एक्वीफायर्स हैं ग्राउंड वाटर, वो भी खराब हो जाएंगे. तो इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए योर ग्राउंड वाटर विल ऑल्सो गेट कंटेमिनेटेड, एज वेल एज योर water that is at the surface will also get contaminated. So this is a very problematic zone. So domestic and municipal pollutants are very important to get control. It is very important कि आप क्या करो, domestic and municipal pollutants को कम से कम इफेक्ट होने दो. Let us talk about domestic and municipal pollutants. Domestic and municipal pollutants. So the sewage contains multiple, जो भी आपका सीवेज है, सीवेज क्या होता है? वेस्ट कमिंग फ्रॉम होम्स. सो जो सीवेज है उसके अंदर गार्बेज होता है, सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, वेस्ट फूड होता है, प्लस देयर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा. क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा. एंड इन सब की वजह से क्या हो सकता है? अ लॉट ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like bacteria, fungi and protozoa
Along with this, algae can cause water pollution. This can affect the water. Because of this, diseases like typhoid, cholera, gastroenteritis, and dysentery can be caused by drinking infected water. अगर infected water हमने drink कर लिया तो ये सारी problems हमें यहाँ से हो सकती हैं. It is responsible for deoxygenating of water bodies and इसकी वजह से there can be other multiple problems. ठीक है. Water pollution can also be caused because of viruses and bacteria. ये अब खुद से नहीं ग्रो कर सकते हैं, राइट. बैक्टीरिया एज वेल एज वायरसेस कैन नॉट ग्रो बाय देमसेल्व्स, बट दे आर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द सेल्स. ये जो सेल्स हैं जो कि होस्ट एनिमल के अंदर होते हैं, होस्ट एनिमल्स के साथ ये वहां से आते हैं. सो होस्ट ऑर्गेनिजम्स लिख लो. ये कहां से आते हैं? होस्ट ऑर्गेनिजम्स के साथ आते हैं, राइट. दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस और इनसे मल्टीपल डिजीजेस होती हैं, जैसे पोलियो, वायरल हेपेटाइटिस, कैंसर. एंड ये सारे ऑक्सीजन डिमांडिंग सब्सटेंसेस है. क्या है? ऑक्सीजन डिमांडिंग सब्सटेंसेस. So they are responsible for deoxygenation of water bodies, जो कि बहुत हार्मफुल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए. सो अब देखो, सबसे पहले अगर हम डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें तो उसमें सीवेज वेस्ट आता है. तो ये सीवेज वेस्ट हो सकता है गार्बेज, सोप्स, डिटर्जेंट्स, फूड वेस्ट या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा से. ये वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ब्रीड करते हैं उनकी वजह से वी कैन हैव डिजीजेस लाइक टाइफाइड एंड कॉलेरा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स और डायसेंट्री जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. लेकिन अगर वायरसेस और बैक्टीरिया की बात करेंगे, सो दीज आर ओनली पॉसिबल व्हेन देयर आर होस्ट ऑर्गेनिजम्स, जिनकी वजह से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, पानी में से खत्म होने लगता है, बिकॉज ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एंड फॉर देयर एक्टिविटीज दे यूज दिस ऑक्सीजन दैट इज प्रेजेंट, राइट. देयर आर अदर indigents which enter into the various water bodies and can cause the problems. अगर water body के अंदर हमारे नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? यूट्रिफिकेशन हो जाएगी. ये क्या हो जाएगा? यूट्रिफिकेशन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट यूट्रिफिकेशन. तो अगर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स बहुत ज्यादा हो गए तो क्या हो जाता है? सो दे इंक्रीज. So it may cause this phenomena of eutrophication. There is because of this there is growth in algae. क्या होता है? algae bloom होता है. algae bloom and these algae are blue and green species. ब्लू एंड ग्रीन स्पीसीज, जिनकी वजह से पानी में क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा एल्गाए ब्लूम करने लगता है. तो व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट दिस विल लीड टू इम्बैलेंस इन द इकोलॉजी. जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है इकोलॉजी के अंदर. हाई टेम्परेचर लोअर्स द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल. ये भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल को इफेक्ट करता है एंड कैन कॉज मल्टीपल प्रॉब्लम्स, राइट. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट दिस यूट्रिफिकेशन अ लिटिल मोर. तो यूट्रिफिकेशन का से रिलेटेड सबसे पहले क्या आ जाता है? टाइप्स ऑफ लेक्स का क्वेश्चन आता है. यहां से हमने यूट्रिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ा था. एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लेक. एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज यूट्रिफिकेशन. Let us study about the three types of lakes. तो अगर आपको लेक की फिटनेस जाननी है, हाउ
fit the lake is, so उसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक इंडेक्स. व्हाट इज द ट्रॉफिक इंडेक्स ऑफ द लेक? क्या देखते हैं हम लोग? ट्रॉफिक इंडेक्स देखते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस ट्रॉफिक इंडेक्स और द ट्रॉफिक स्टेट ऑफ द लेक, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ, यहाँ क्या होते हैं? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लेक्स. कौन सी लेक्स होती है? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लेक्स. द फर्स्ट लेक, लेट मी शो यू द पिक्चर पहले. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेक्स. ये पेपर में काफी ज्यादा आता है. There are three types of lakes. सिर्फ ओलिगोट्रॉफिक है यहाँ तो. ओके, ठीक है. सो we have three kinds of lakes and you can look at this from the diagram that is there. Okay, so trophic state index, the trophic state index says that there are three types of lakes: oligotrophic, mesotrophic and eutrophic lakes. I'll draw this and then I'll come here. So कौन सी है? सबसे पहले is oligotrophic lakes. Then we have mesotrophic lakes. और कौन सी होती है हमारे पास? यूट्रॉफिक लेक्स. पहली लेक्स ओलिगोट्रॉफिक लेक्स. ओलिगोट्रॉफिक लेक्स के अंदर क्या होता है? नाउ दिस इज योर वाटर बॉडी, सपोज, ठीक है, दिस इज योर वाटर बॉडी. नाउ इन एन ओलिगोट्रॉफिक लेक देयर इज लेस न्यूट्रिएंट्स. यहाँ क्या होता है? लेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से देयर इज क्लीन वाटर, एंड less organisms and less flora and fauna भी कमी होती है. less amount of vegetation is there. this is oligotrophic lake. what is a mesotrophic lake? यहाँ पे we have moderate nutrients होते हैं इस लेक के अंदर. now in this lake there is, आप कह सकते हो, clear water, less clear water and some nutrients are added. तो थोड़े न्यूट्रिएंट्स की वजह से फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे ग्रो भी करती है, और पानी इतना क्लियरली आपको नहीं नजर आता, आपको पानी का बेड इतना क्लियर नजर नहीं आता है. यूट्रॉफिक लेक्स आर दोज लेक्स which have a lot of organisms growing. यहाँ पे बहुत ज्यादा organisms भी grow करते हैं. फ्लोरा एंड फौना भी बहुत ज्यादा होता है. फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. प्लस देयर इज वेजिटेशन ऑल अराउंड, सो दे हैव हाई न्यूट्रिएंट्स. क्या होते हैं? हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड हाई फ्लोरा एंड फौना भी होता है. सो दे आर कॉल्ड एज यूट्रॉफिक लेक्स. यहाँ पे क्या होने लगता है? बिकॉज ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट्स देयर इज द ग्रोथ ऑफ एल्गाई. there is a growth of algae called as algae bloom. इसे हम क्या कहते हैं? algae bloom. जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो पानी में एंटर नहीं कर पाती, एंड यहाँ पे क्या बनने लगता है? so we have dead zones here. the flora and fauna die because all the oxygen is used by the algae to breed itself. एल्गाई ही सारा पानी क्या करती है? यूज करने लगती है. इस प्रोसेस को हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रिफिकेशन. ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यूट्रिफिकेशन कहते हैं. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लेक्स: लो न्यूट्रिएंट्स एंड कूल एंड क्लियर वाटर इज ओलिगोट्रॉफिक.
देन मीसोट्रॉफिक मॉडरेट होता है, एंड यूट्रॉफिक में बहुत मडी वाटर हो जाता है एंड बहुत एल्गाए ब्लूम होता है. दिस मीन्स देयर इज हाई न्यूट्रिएंट्स, इंक्रीज एल्गाए ग्रोथ एंड लेस ऑफ वाटर क्लैरिटी. सो अगर आप लेक की सुपरियोरिटी देखते हो, लेक कब कब एजिंग ऑफ द लेक, लेक कितनी पुरानी होती जाती है, जैसे जैसे लेक पुरानी होती जाएगी न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होने लगते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास ओलिगोट्रॉफिक है जो कि बहुत ही यंग, क्या कह सकते हो, ये बहुत ही यंग लेक है. उसके बाद मीसोट्रॉफिक होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थोड़े से इंक्रीज होते हैं. सबसे ज्यादा सुपीरियर कौन सी होती है, यूट्रॉफिक लेक सबसे सुपीरियर होती है, बिकॉज यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं. क्या होते हैं, हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं. वाटर कैसा हो जाता है, वाटर बहुत ही क्लाउडी होता है, बहुत ज्यादा मडी वाटर होता है, बहुत ज्यादा मडी वाटर होता है. विजिबिलिटी बहुत कम होती है, पानी बहुत ज्यादा कोल्ड भी नहीं रहता है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर योर यूट्रॉफिक लेक्स. एंड ये अलग अलग लेक्स के अंदर अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होता है. ठीक है. सो यूट्रिफिकेशन की फोटो दिखाती हूँ अब मैं आपको. So eutrophication process. Now this is how eutrophication happens. So you can look at this diagram, you'll understand. Okay, this diagram you'll understand किस तरीके से because of excess nutrients eutrophication happens. तो यहाँ पे you can observe that the sunlight, it is impossible for the sunlight to go down. Why? Because there are sediments that will block the sunlight. Also there is this algae bloom जो कि क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है सनलाइट को नीचे जाने में. This means that the water will become too cold. The water will become too cold for the organisms here to breathe. There will be a lot of dead and decaying matter, that is algae. Algae will bloom, algae will die also, algae will decay. And for this process, for this decomposition process, algae will use oxygen. तो सारा पानी का ऑक्सीजन कौन यूज कर लेगा, एल्गाए यूज कर लेगा. एंड ऑल द ऑक्सीजन विल गो देयर एंड द जितनी भी आपकी फ्लोरा एंड फौना है, दे विल अल्टीमेटली डाई. Plankton growth on the said grasses also. Then these nutrients cause increase in the phytoplankton growth. बहुत ज्यादा phytoplankton भी बढ़ जाएंगे. बहुत ज्यादा नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की वजह से we will lose the natural oxygen that is there, right? Food habitat and oxygen production will get affected. Recreational value चली जाएगी. इस algae bloom की डेथ की वजह से बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल भी आया करेगी. So ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ होती है, यूट्रिफिकेशन. It is related to the water bodies and it mostly occurred in the shallow water. Risk is more in the shallow water. It is about excess of the plant growth and the growth of the other substances in the water body. So eutrophication occurs in lakes, canals or shallow water because of the excess growth factors, because of nitrogen, carbon and phosphorus. It is also of two types. Eutrophication कैसा होता है, दो तरीके का होता है. Another PYQ that was asked in the paper. So ऐसा eutrophication जो naturally हो गया, it is called as natural eutrophication. It is a process and not influenced by human activities. ये अपने आप होता रहता है धीरे धीरे, right? It is a slow process and it takes years to happen. Cultural eutrophication क्या होता है? It is not a natural process and it is influenced by human activities. It is a speedy process and it takes weeks and months to happen. It is the indigenation of the natural यूट्रिफिकेशन. जब यूट्रिफिकेशन को एक्सेस में बूस्ट मिल जाए उसे कल्चरल यूट्रिफिकेशन कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने खुद से ही फॉस्फोरस और नाइट्रेट्स बहुत यूज किए हुए थे अपने फार्म्स में और पानी लीच आउट कर गया, राइट? सो व्हाट आर द सम ऑफ द कॉजेज दैट आर देयर? सो एक्सेस या इंटेंसिव यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स दैट कैन रन ऑफ, number of industrialized activities done because of fertilizers, food and pesticides. Also organic waste like solid waste अगर आपने यहाँ पे डाल दिया लाइफ स्टॉक का,
तब भी प्रॉब्लम होगी और यूट्रिफिकेशन होगा, एल्गाई ब्लूम करेगी, फिशेस सफोकेट कर जाएंगी एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स विल बी कॉज. So process क्या है? A fertilizers which flow into the water contain nitrogen. Due to nitrogen in it, plants and algae will grow excessively because of these nutrients. हमारे plants और algae ज़्यादा से ज़्यादा grow करेंगे. Due to the growth of the plants, the result is that the solar radiation won't enter. Furthermore, as a result, the death of the small green plants and animals will be caused. Due to this, smaller green plants and animals will decompose, which further use oxygen and it will suffocate the aquatic animals. तो इस से क्या होगा? Eutrophication results in the degradation of water quality. हमारी water की quality खत्म हो जाएगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, टेस्ट, एडिशन ऑफ मल्टीपल टॉक्सिन हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड हो जाएगा. यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं? वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. इट हार्म्स द एस्थेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर बॉडी बिकॉज स्मेल आएगी, और पब्लिक रिस्क भी हो जाएगा बिकॉज बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एनिमल्स यही पानी पिएंगे, कैंसर भी होने के चांसेस हैं. तो सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग कम से कम एग्रोकेमिकल सब्सटेंसेस यूज करें एंड स्ट्रेंथन करें एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट्स, ताकि हम लोग क्या करें? एल्गाई को ब्लूम होने से बचा पाए. फिजिकल हैंडलिंग या फिर रिमूविंग ऑफ एल्गाई बाय हैंड्स कैन बी डन, या बायोडीजल डाल के भी एल्गाई को मारा जा सकता है. सो अगर ये सारी चीजें हम करेंगे, सो वी कैन हेल्प आवरसेल्व्स एंड कैन प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज. सो दिस इज यूट्रिफिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, पेपर में बहुत आता है. Then there is another thing that can help you determine is the water body fit or not, and it is called as BOD. What is BOD? Biological oxygen demand. Biological oxygen demand. ठीक है? So the quality, write it down. The quality of oxygen used up by microorganisms at 27 degrees Celsius and in darkness during 3 days in breaking down organic waste in a water body is called biological oxygen demand. तो वो ऑक्सीजन, वो क्वांटिटी, इट शुड बी क्वांटिटी, गलती से क्वालिटी लिख दिया है ना. The quantity of oxygen used up by microorganisms, कितना ऑक्सीजन माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज कर लेते हैं at 27 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर में जब अंधेरा हो, और क्या हो जाएगा? 3 दिन मैक्सिमम लगा के अपने ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ने में कितना ऑक्सीजन यूज करते हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. Right? It can be explained further. Let me try that. You know that there are many organic compounds or waste that are present in the water body. अब जो हमारा water body है, ये जो हमारा water body है, in this water body there are multiple organisms that are there, है ना? काफी सारे organisms are present here. So there are a lot of organisms that are present. Multiple organisms are present. The organisms present in the system act upon this waste for its own consumption. So अब पानी के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, और मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे ब्रीड करने लगते हैं, इस पे फीड करने लगते हैं, इसको डिकम्पोज करते हैं.
ठीक है। इन दिस प्रोसेस द मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और इस ब्रेकिंग डाउन में, इस ब्रेकिंग डाउन ऑफ वेस्ट के अंदर, इस वेस्ट के अंदर इनको O2 चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन का नीड होता है। ऑक्सीजन इज नीडेड, dissolved oxygen that is present in the water. It is the amount of oxygen which is defined as BOD. The BOD value of the aquatic system depends on the amount of aquatic waste. अब BOD किस पर डिपेंड करता है? BOD depends on amount of aquatic waste. कितना ज्यादा aquatic waste या organic waste, aquatic की जगह organic कर लेते हैं, कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट दैट इज प्रेजेंट, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की हमें नीड पड़ेगी। ऑर्गेनिजम्स कितने ज्यादा हैं? हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, ज्यादा है या फिर कम है? ऑल्सो टेम्परेचर एंड पीएच वैल्यू पे भी बहुत डिपेंड करता है। So greater the amount of organic waste in the water body, greater will be the amount of oxygen that is required. जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट होगा पानी में, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट, उतना ही ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डीकम्पोज करने में, एक्टिविटीज करने में, एक्टिविटी ऑफ ब्रेकिंग डाउन के अंदर ऑक्सीजन का नीड बढ़ता रहता है, राइट? So therefore higher will be the BOD value of the waste. This value is a good measure of talking about the degree of pollution in the water. अब अगर मैंने देखा कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लग रहा है पानी के अंदर, दैट मीन्स मेरा पानी पॉल्यूटेड है। क्या है? पॉल्यूटेड है। The less polluted water shows comparatively low BOD, right? This means there is pollution. ये ऑर्गेनिक वेस्ट तो पॉल्यूशन है ना, वेस्ट तो पॉल्यूशन है। अगर लेस ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ, अगर लेस ऑर्गेनिक वेस्ट हुआ तो लेस बीओडी होगा, लेस बीओडी होगा। दिस मीन्स दैट देयर इज नो पॉल्यूशन। क्या है? वाटर पॉल्यूशन नहीं है। सो वाटर पॉल्यूशन है और नहीं के इंडिकेटर्स है हमारा बीओडी। दिस वैल्यू इज यूज्ड as the criteria for managing the water pollution in the water bodies. An evaluation is made by determining oxygen concentration in water before and after incubation at 20 degrees Celsius in dark for 5 days. So एक बार इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, तब से हमने ये क्या करा है? फाइंड करना स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, आई होप यू रिमेंबर कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बायोमैग्निफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वाटर सिस्टम, वाटर पॉल्यूशन के साथ ही वो आता है। बायोमैग्निफिकेशन, सो देयर आर अ वेराइटी ऑफ केमिकल्स दैट मूव थ्रू द फूड चेन, जैसे कि टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स दैट आर देयर आर फंजाई, देयर आर हर्ब्स एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल डीडीटी इज अ कॉमन फैक्टर। अगर ये हमारे क्या हो जाता है फूड चेन में, सो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड टॉक्सिक केमिकल्स as one goes higher in the food chain is called as biomagnification. So जब हम food chains भी change करते हैं, it is called as biomagnification. I'll give you the definition. Increase in concentration of accumulated toxic chemicals as one goes higher in the food chain is termed as biomagnification. It is called as biomagnification. Okay. Please write it down.
देन बायो एक्यूमुलेशन हमने देख लिया है, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन दोनों हमने देख लिया है. Then we'll start with another very important topic, and that is wastewater generation in the household activity and how do we protect it. So sewage waste के बारे में पढ़ेंगे. So let us first I'll show you the picture here. Treatment process of sewage waste. So there are 3 steps that you have to follow or you need to learn. कौन से 3 steps है? There is primary, secondary, and there is another tertiary level, treatment that is also needed. So we'll be studying about this. सबसे पहले आप क्या देख रहे हो? रॉ सीवेज आता है स्क्रीन से, जो कि कम्युनिकेटर डिब्रस के हिसाब से गर्ड चैम्बर में जाता है, एंड गर्ड डिस्पोजल्स के थ्रू हम कुछ वेस्ट कलेक्ट कर लेते हैं. फिर ये प्राइमरी क्लैरिफिकेशन के अंदर जाता है. रॉ एंड प्राइमरी स्लज यहाँ से डिस्पोज ऑफ हो जाता है, while we have primary effluent that goes to the aeration tank where oxygen is added. When oxygen is added here, यहाँ पे anaerobic activities होती हैं, जितने भी केमिकल हैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट वो हैवी हो जाते हैं एंड दे सेटल डाउन. एयर यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं एक डायरेक्शन के अंदर. बिकॉज ऑफ दिस द केमिकल सेटल and the water that is pure would go to the second clarification tank. If there is still some sediments present, it will again go to the activated sludge. Sludge क्या होता है? ऐसा वेस्ट जिसमें थोड़ा सा पानी हो. उसके बाद वो सेकेंडरी एफ्लुएंट में जाता है, जहाँ पे हम टर्शरी मेथड स्टार्ट करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यहाँ डालते हैं जैसे कि क्लोरीन. Okay, and sometimes we also in the tertiary treatment do what? Pass ultraviolet rays in the water. Water becomes clean and ultimately fit for us to drink. So there is a water treatment system that is always needed so that you can clean the water. So let us study about it. For a very long period of time, the municipal waste in the form of sewage involve mainly of the removal of the suspended solids, oxygen demanding metals and harmful bacteria. Now the disposal of the solid residue from the sewage is becoming important and एक municipal treatment process होने लगा. This process has 3 stages. The entire process has 3 stages. क्या है यहाँ पे? So सीवेज वेस्ट का एक अपना क्या होने लगा है, प्रोसेस होने लगा है. एंटायर प्रोसेस. देयर आर 3 stages that are there. What is this treatment phase? म्युनिसिपल ट्रीटमेंट भी उसे बोल सकते हो. We have primary treatment, secondary treatment, and we have tertiary treatment. So what happens in the primary treatment? सबसे पहले primary treatment डिस्कस करेंगे. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? So primary treatment, when the wastewater is to be dumped in the river or in the streams, the treatment is carried out by sedimentation, clogation and filtration. So primary treatment के अंदर there are 3 steps that are done. The first is sedimentation, clogation as well as filtration. अब पेपर में क्या आता है, ये सेट करने के लिए आ जाता है क्रोनोलॉजी के अंदर. This is known as primary treatment. If the water is required for drinking purposes, it is undergone the further treatment that is called as the secondary and the tertiary treatment. अगर पानी को हमें डायरेक्टली कहाँ डालना है, लेक्स में या फिर रिवर्स में डालना है, तो हम मोस्टली क्या करते हैं, लेक्स या रिवर्स में, तब हम मोस्टली सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं. एंड व्हाट ऑल आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व हियर? द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज sedimentation. The first step is sedimentation.
दिस स्टेप इज कैरीड फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट, जहां पे हम क्या करते हैं, सिल्ट या क्ले अगर पानी में होती है या कोई भी अलग लार्ज सब्सटेंसेस पानी में है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी से निकाल देते हैं, सिल्ट या क्ले हम उसे पानी से हटाते हैं. देन वी हैव क्लॉगेशन. सो यहां पे हम लोग फाइन पार्टिकल्स को क्या करते हैं, फाइन पार्टिकल्स को, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोलाइडल सस्पेंशन के थ्रू, कोलाइडल सस्पेंशन के थ्रू उन्हें हटाते हैं. जैसे कि I'll read it. So fine particles and colloidal suspension are combined into large particles by the process of clogation. This step is carried out by the addition of special chemicals called as the floccuants. और यहाँ पे हम special chemicals called as floccuants पानी में डालते हैं and उनको heavy कर देते हैं particles को. So कुछ पानी के अंदर से silt और clay तो यही remove हो गया, कुछ heavy metals को already हम लोग फ्लॉक्वेंट्स डालकर क्या करते हैं, उसको हेवी करके उनको डिस्पोज ऑफ करने का ट्राई करते हैं. सच एज पोटैश एल्यूमियम, सॉरी पोटैश एलम, एलम डाल के, फिटकरी डालते हैं ना पानी में, उस तरीके से पोटैश एलम डाल के, पोटैश एलम डाल के पानी में जो सब्सटेंसेस हैं उनको क्या करते हैं, फ्लोकेशन करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्लोकेशन हैपेंस. Then what happens? There is what the large particles are going to settle at the bottom and we'll remove them. After that we do filtration. उसके बाद हम third step करते हैं and it is called as filtration. What is this filtration? So filtration में suspended particles of floccuants of bacteria and other particles are going to settle down. They will settle down. And ultimately we are going to do what? We are going to divide these total impurities. So the total impurities are collected and they are called as sludge. इन impurities को हम क्या कहते हैं, sludge कहते हैं, slurry कहते हैं, और अब इन्हें collect कर लेते हैं. It is used as fertilizers and of course on composing them, जब यहाँ पे anaerobic bacteria इन पे breed करता है, तब इसे हम लोग क्या करेंगे, sludge को पानी से बिल्कुल हटा के sludge gas में भी convert कर सकते हैं. किसमें कर सकते हैं, स्लज गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ, एंड यहां से हम मीथेन गैस बनाते हैं. क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं. नाउ यहाँ पे समझना क्या जरूरी है, इस गैस को हम कुकिंग पर्पसेस के लिए आगे क्या करते हैं, यूज करते हैं. So let us see this picture and you will understand it. So this is the first step. यही आज हम करने वाले हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट. और ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कब करते हैं, जब हमें पता है कि अब हम इस पानी को रिवर में डालना चाहते हैं. दोबारा से ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए नहीं होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट. सीवेज वेस्ट जाता है वो स्क्रीन्स के थ्रू, जिसे हम डिब्रिस कहते हैं, डिब्रिस, उसके थ्रू ये यहाँ क्या होता है, स्कैन होके नीचे आता है. देन वी हैव कम्यून्यूटर, जो कि इसको क्या करता है, बहुत मशीन्स रोल करती हैं ताकि बड़े बड़े सब्सटेंसेस, जैसे हो सकता है कुछ बॉटल्स या फिर कुछ स्टोन्स जो थोड़े बड़े हैं वो यहीं अलग हो जाए. फिर वो गर्ड चैम्बर में जाता है या फिर ग्रिड चैम्बर, यहाँ से कुछ हमें ग्रिड डिस्पोजल मिल जाता है. देन वो क्लैरिफिकेशन टैंक के अंदर आगे जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे पूरे में हमने 3 प्रोसेस कर लिए हैं. दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन, जहाँ पे हम लोग सिल्ट एंड क्ले अलग कर देते हैं. देन हम लोग क्लॉगेशन करते हैं, फाइन पार्टिकल्स अलग करते हैं. कोलाइडल, यहाँ पे पानी हमने देखा कि ये सारी कुछ इम्प्योरिटीज थी, हमने यहाँ पे एलम डाली, जिसकी वजह से वो हैवी हो जाते हैं. क्या हो जाती है, वो हैवी इन नेचर बन जाती हैं और वो नीचे सेटल कर जाएंगी. इसको हम लोग स्लज भी कहते हैं. ठीक है, इसको स्लज कहने लगोगे या फिर आप इसे सस्पेंडेड, कोलाइडल सस्पेंडेड कहते हो. एंड फ्लॉक्वेंट्स यहाँ पे डाले गए हैं. फिटकरी को क्या बोलते हैं, फ्लॉक्वेंट्स भी कहा जाता है. उसके बाद इस वाटर को हम लोग क्या करते हैं, छान लेते हैं, जिसे फिल्टरेशन कहते हैं. अब ये फ्लॉक्वेंट यहीं रह जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, हमारा क्लीन वाटर. नाउ दिस इज कंपैरेटिवली क्लीन. क्या है, थोड़ा सा क्लीन वाटर है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर्स में फ्लो करा सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी स्टेप. अगर आपको प्राइमरी से सेकेंडरी में जाना है तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करना पड़ेगा. इसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट.
You have to start with biological treatment. Now, what is this biological treatment? We'll study about this. So, secondary treatment is also called as biological treatment. The water after primary treatment is not fit for drinking purposes. So हम उधर से प्रोटोजोआ या फिर बैक्टीरिया हटाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड. फर्स्ट वी डू सॉफ्टनिंग. सॉफ्टनिंग के अंदर से हम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिमूव्ड. कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव करते हैं ताकि हमारा पानी हार्ड वाटर ना रहे, क्या हो, सॉफ्ट वाटर रहे. देन हम वाटर को ट्रीट कराते हैं लाइम एंड सोडा ऐश के साथ टू प्रेसिपिटेट Ca2+ आयोन्स, जिन्हें हम कार्बोनेट्स कहते हैं. तो पानी क्या हो जाता है, वाटर बिकम्स सॉफ्ट. पानी क्या हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है. फिर हम सेकेंड स्टेप करते हैं जिसे हम एरिनेशन बोलते हैं. यहाँ पे सॉफ्ट वाटर के अंदर हम एयर फोर्स डालते हैं. मतलब एयर फोर्स मतलब हम ऑक्सीजन ऐड करते हैं पानी में. वी ऐड ऑक्सीजन. So this added oxygen will reduce carbon dioxide as well as sulfide. It will kill microorganisms और इसकी वजह से microorganisms kill हो जाते हैं. ये हमारा सेकेंड स्टेप है. देन आते हैं हम थर्ड स्टेप पे, दैट इज टर्शरी वाटर. अब टर्शरी के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें कुछ डिसइंफेक्शन करना पड़ता है. डिसइंफेक्शन जो कि हम लोग क्लोरीन डाल के करते हैं. क्या डालते हैं, क्लोरीन. इट विल डू व्हाट, ये ऑर्गेनिक मैटर, अगर थोड़ा सा भी कोई ऑर्गेनिक मैटर रह गया है उसको क्लीन कर लेता है. ओके. क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर यूज्ड here. Chlorinated hydrocarbons are used here. So this water will become 99% fit for drinking. Okay. Now please note this down. इसको note करो. Then we'll move forward and I'll wind up the class. Right. आई होप दिस इज क्लियर. सो यू अंडरस्टूड कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट सिर्फ वाटर को दोबारा पानी में अगर वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करना है तब करते हैं. एंड वी गो फॉरवर्ड टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब एरिनेशन टैंक्स में जाता है. एंड देन वी हैव द डिसइंफेक्टेंट. एंड याद रखना जितना भी स्लज होता है हम उसे डंपिंग ग्राउंड में लैंडफिल्स में सेंड करते हैं जहां से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं. मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है. तो यहीं पर ही आई विल लीव यू टुडे. वेरी इंपॉर्टेंट है मीथेन गैस के बारे में भी जानना. ये सब चीजें हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस. With this, I will wind up the class. Thank you and have a wonderful day. I'll see you in the next class and we will again start with the pollution only, जिसमें हम या फिर waste या फिर soil pollution से start करेंगे या noise pollution से. ठीक है? So I hope this is clear and thank you for coming and studying. Bye bye.